Hello everybody, I am Namita Jain. Welcome to the session of paper 1. The paper is general paper on teaching and research aptitude, and in this paper we will be discussing some of the previous year questions of reasoning which were being asked in NTA UGC NET examinations. These are the links for the Telegram. This is my email address and this is my YouTube channel. You can see the previous videos from this YouTube channel. The first question is, what is the number that comes next in the sequence? So here the numbers have been given as 2, 5, 9, 19 and 37. So what should be the number which should be there in the next sequence? So let's see how to do this question. Suppose this is 2, 5, 9, 19 and 37. So let's see if there is any kind of combinations which are going on or any kind of the relationship which we can see in the two numbers. So I can do like this: 2 into 2 plus 1, that is equal to 5. So here it will come as 5. Then 5 into 2 minus 1, that is equal to 9. तो एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार हम माइनस करेंगे. फिर नेक्स्ट नंबर के लिए 9 into 2 plus 1, it is equal to 19, and for the next number 19 into 2 minus 1 is equal to 37. Okay, तो similarly next number क्या हो जाएगा? 37 multiplied by 2 plus 1, it is equal to what? 37 into 2 is 74 plus 1 is equal to 75. So it is equal to the 75. Okay, so this is the correct answer. So this is the correct answer and this is how we have done this question. Now let's move to the next question. The question is, if 367 means I am happy. So this is 367, which means I am happy. Then the next is 748 means you are sad. Okay, and 469 means happy and sad. So 469 means happy and sad. Now it has been asked here, like, which of the following represents and in that code. तो and किसको represent करेगा? अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है happy and sad. So if you are saying happy and sad, 469 और 6 इधर भी आ रहा है तो ये और ये तो कॉमन हो गए. देन sad के लिए 4 इधर भी आ रहा है और 4 इधर भी आ रहा है तो अगेन इट इज़ कॉमन. तो 9 एक ऐसा नंबर है जो कहीं पे पहले नहीं आया है और एंड भी ऐसा है जो पहले कहीं नहीं पूछा हुआ है. तो दैट मीन्स 9 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. Okay, so like this 9 is the correct answer. So we can say this is the correct answer for this question. Let's go to the next question. The next question is, if A is coded as C, M is coded as I, N is coded as P, S is coded as O, I is coded as A, P is coded as N, E as M, O as E and C as S, then the code of companies will be what? Then the code of companies will be what? So companies का code क्या होगा इस केस में? तो here it is, companies को हम क्या लिखेंगे? C का मतलब S है तो हम यहाँ लिखेंगे C के लिए S. O के लिए क्या लिखेंगे? O के लिए हो जाएगा it is E. So it is E. For again M, it is I. For M, it is I. Again for P, it is N. For A, it is C. For N, it is P. For I, it is A. For E, it is M. And for S, it is O.
So it is SEINCPAMO. Okay, तो इस हिसाब से this is the correct answer and this question was asked in UGC NET एग्जामिनेशन जनवरी 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question, if a certain code selection is coded as Q, C, J, C, A, R, G, M and L, then the code Americans will be what? Then the code Americans will be what? तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि P, Q, then R and then S. तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है Q और R का. C के बाद में D and then E. So like this again D का डिफरेंस है. And like this it is going on. So similarly for A, what I can write is, for A we can write here as Y. Y के बाद में Z और फिर A का डिफरेंस है. फिर उसके बाद में we have K, L and M. तो M के बाद में we can write like this K, L and M. Okay, then we have C, D and E. Then we have P, Q and R, G, H and I, A, B and C, and then we have Y, L and Q. तो ये इस तरह से हमारे पास में आ जाएगा. तो जो करेक्ट आंसर है इसका, दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इज तो यहाँ पे एक सीरीज़ दे रखी है 2, 5, 10, 17, 26 एंड 37. ये जो नेक्स्ट नंबर होगा वो यहाँ पे क्या होगा? ओके, तो 2 और 5 में देखते हैं कितना डिफरेंस है. 3 का डिफरेंस है. 5 और 10 में 5 का. 10, 17 में 7 का. 17 और 26 में 9 का. 26 और 37 में 11 का. तो 37 के बाद में नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13 का डिफरेंस होगा, मतलब 50. सो यू कैन सी हियर 3, 5, 9, 7, 11, 13, 17 and all. So like this the difference will go on and the next difference is of 13 and the number will be 50. So this is the correct answer. 50 is the correct answer for this question. Let's go to the next question. In this question, the term in the series is what? This is the next term, we have to find it out. B2E, D5H, F12K, H27N. अब हमें निकालना है जो नेक्स्ट नंबर होगा वो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा. तो देखिए कैसे निकालेंगे. B के बाद में C एंड D, D के बाद में E और F, F के बाद में G और H, H के बाद में I और J. ओके, अगेन E के बाद में E, F, G एंड H, I, J एंड K, L, M एंड N, O, P एंड Q. तो यहाँ तक तो आ जाएगा J एंड Q. तो यहाँ देखते ही हमें पता चल रहा है कि द आंसर इज दिस, बिकॉज यहाँ पे J आ रहा है और यहाँ पे Q आ रहा है. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस J, Q. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इज. What is the next term in the series? We have AB, then ED, IH and NM. So what is the next term in the series? The question is asked like this. So you can see from here AB is written like this. AB, C नहीं है यहाँ पे. Then DE, then DE, then F, G and HI, JKL and then MN. तो उसके बाद में क्या हो जाएगा? OPQR and ST. So like this it will be written in this manner. AB, then C नहीं है, फिर DE, फिर FG नहीं है, फिर HI, फिर JKL नहीं है, फिर MN, फिर OPQRS नहीं है, OPQR नहीं है, फिर ST.
So like this we'll be writing here it as in this manner. Okay, so the correct answer will be TS. तो TS इसका correct answer होगा. The next question is, if streamers is coded as this, streamers को हम किस तरह से लिखते हैं? Streamers is coded as UVTGALDQR. Then knowledge will be coded as what? Okay, तो ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से अगर हम देखें तो RS then T and U, TU and V, RS and T, EF and G. तो लाइक दिस बीच में एक एक का गैप है. ओके, तो हम सेम स्ट्रेटजीज यहाँ पे भी लगाएंगे. K, L और M, N, O और P, O, P और Q, W, X और Y, L, M और N एंड लाइक दिस इट विल गो ऑन. तो ये जो हम सीरीज़ देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली द आंसर विल बी, ये हम यहाँ पे इस तरह से देख रहे थे. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम ऐसे सेम सीरीज़ को चलाएंगे तो यू कैन सी कि हमें कहीं पे भी आंसर नहीं मिल रहा है. लाइक M, O, Q, Y and N. So we are not getting the answer like this. M, N, O and P, M, P. But still we are not getting any of the answers. M, P, Q, Y के बाद में हमें आंसर नहीं मिल रहा है. तो what we have to do is we have to again search for the first term. तो हमने वापस देखा कि यहाँ पे देखिए जो A है उस A को हमने as it is यहाँ A लिखा है. तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे. यहाँ जो L लिखा हुआ था उस L को हम as it is यहाँ पे L लिखेंगे. तो हमने यहाँ पे इसको L लिखा. तो M, P, Q, Y and L like this. तो यहाँ से हम देख सकते हैं it is M, P, Q, Y and L. उसके बाद वापस देखिए R के बाद में S, then उसके बाद में D and E and like this it is going on. तो इस हिसाब से the answer is again if we solve it like this it is D, then this is C, it will be coded as F and this will be coded as D. तो ये इसका करेक्ट आंसर है. M, P, Q, Y, L, D, C, F, D is the correct answer of this question. ओके, तो कुछ क्वेश्चंस में आपको पूरी सीरीज़ दी हुई होती है जिसमें यू हैव टू डू इट बाय द हेल्प ऑफ दिस. किसी में आधी सीरीज़ है, देन वन थिंग इज़ कांस्टेंट एंड अगेन वी हैव द सीरीज़. तो इसी क्वेश्चन में यही था कि कुछ सीरीज़ आपको दे रखी है कि ये जो स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट्स हैं इसके अकॉर्डिंगली ये जो अल्फ़ाबेट है ये कांस्टेंट है एंड अगेन वी हैव दीज 4 अल्फ़ाबेट्स. ओके, and we have to put this alphabet as same in the case of your result and we have to make changes in these 4 alphabets. यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, how we have to make the changes. तो वो हमें देखना है. बाकी जो एक अल्फ़ाबेट है वो आपका यहाँ से यहाँ वाला कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है द आंसर इज बी. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़. The next term in the series is what? It is 2, 7, 28, 63, 126. अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमने क्या किया है. अब हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. तो लेट्स सी कि कुछ ना कुछ सीरीज़ बनानी है हमें. तो मैंने सीरीज़ इस तरह से बनाई. 1 का क्यूब प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू 2. 1 का क्यूब कितना होगा 1 और 1 + 1 कितना होता है 2 होता है. देन अगेन आई हैव 2 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 9 आ रहा है. अगर मैं -1 कर लूँ तो क्या आ जाएगा इट इज़ इक्वल टू 7. तो 2 भी आ गया 7 भी आ गया. चलिए थर्ड टर्म देखते हैं हो रहा है कि सेटिस्फाई. 3 का क्यूब प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू 28. बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है. 4 का क्यूब -1, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 -1 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा. देन वी हैव 5 क्यूब प्लस 1. तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू 126. नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 का क्यूब -1. 6 का क्यूब -1 कितना हो जाएगा आपका 216 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 215. तो यहाँ पे आ जाएगा 215. ओके, तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किया है इसके अकॉर्डिंगली वी हैव द ऑल्टरनेट सीरीज़. एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस, अगेन प्लस माइनस, देन प्लस एंड सो ऑन इट इज़ गोइंग ऑन. सो द आंसर इज़ 215 इन दिस केस.
तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 215. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मीता एंड समीता आर ब्रिलियंट एंड स्टूडियस. मीता एंड समीता दोनों क्या हैं? ब्रिलियंट भी हैं और स्टूडियस भी हैं. अनीता एंड कराबी. अनीता एंड कराबी आर ओबीडियंट एंड इर्रेगुलर. ओके. बबीता एंड मीता आर इर्रेगुलर एंड ब्रिलियंट. ओके. समीता एंड कबीता आर रेगुलर एंड ओबीडियंट. तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसा कौन है जो ब्रिलियंट भी है. तो देखो ब्रिलियंट कौन कौन है, ये और ये वाली कैटेगरी. ओबीडियंट भी है, ब्रिलियंट के साथ में ओबीडियंट भी आना चाहिए. रेगुलर भी है और स्टूडियस भी है. तो ब्रिलियंट स्टूडियस भी है. ओके. और ब्रिलियंट है, स्टूडियस है, रेगुलर है और ओबीडियंट है. रेगुलर भी है और ओबीडियंट भी है. तो ये रेगुलर भी है और ओबीडियंट भी है. तो आप यहाँ से देख सकते हैं ब्रिलियंट, स्टूडियस, रेगुलर एंड ओबीडियंट. तो ये सब में कॉमन कौन आ रहा है? समीता अलोन. क्योंकि समीता ही है जो ब्रिलियंट, स्टूडियस, रेगुलर और ओबीडियंट चारों हैं. तो ब्रिलियंट, ओबीडियंट, रेगुलर और स्टूडियस. सो समीता इज़ द करेक्ट आंसर. ओके. सो लाइक दिस समीता इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सीरीज. हमारे पास एक सीरीज है. हाउ मेनी पेयर ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 ईच. 2 का डिफरेंस है सक्सेसिव नंबर्स के अंदर. ये हमारा क्वेश्चन है. तो ये आपको सीरीज दे रखी है और ये पूछ रखा है कि ऐसे कौन से पास पास के 2 नंबर्स हैं जिनमें 2 का डिफरेंस है. तो ये आपको देखना है. तो हम पहले सीरीज़ लिख लेते हैं. 6 4 1 2 2, 8 7 4 2 1, 5 3 8 6 2 2 7 1, 4 1 3 5 एंड 8 6. अब हमको देखना है कि दो ऐसे पास के नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस हो. तो देखो 6 और 4 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है यहाँ पे. उसके बाद में आगे चलेंगे यहाँ पे 4 - 2 में भी कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है. उसके बाद 5 - 3 में भी कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है. 8 - 6 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है. और 8 - 6 में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है. तो हमारे पास ऐसे 5 पेयर्स बने, 1 2 3 4 एंड 5, जिसके अंदर कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इस 1 और 3 को क्यों नहीं लिया, इसमें भी तो 2 का डिफरेंस है. तो देखो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा हम फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से माइनस करेंगे. तो अगर मैंने इसको इससे माइनस किया तो ये -2 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा. पर बाकी सब नंबर्स में देखिए जब हमने माइनस किया है, 6 - 4 2 हो रहा है, 4 - 2 2 है, 5 - 3 2 है, 8 - 6 2 है. पर अगर मैंने 1 - 3 किया होता तो ये कितना हो जाता? -2. सिमिलरली अगर मैंने 3 और 5 में भी देखा तो 3 और 5 में अगर मैं डिफरेंस निकालती तो कितना हो जाता? -2. तो इस हिसाब से वी हैव दीज 5 पेयर्स, 1 2 3 4 एंड 5. तो वी हैव दीज 5 पेयर्स ओवर हियर. तो करेक्ट आंसर है हमारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 5. सो 5 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके. तो आई होप आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी.